इजराइल ने पैलेस्टीन और हमास के खिलाफ अपने अटैक्स फिर से शुरू कर दिए हैं क्योंकि वो जो संधि हुई थी, वो ये युद्ध विराम हुआ था, उसमें विच्छेद हो गया है। बात यह है कि हमास ने यूएस के पास से लगाई गई शर्तों को मानने से इनकार कर दिया, नहीं मानी। कई सारे प्रपोजल्स थे जो अमेरिका ने रखे थे जिसको कि ठुकरा दिए गए, और इजराइल का ये कहना है कि उनके जितने भी बंधक हैं उनकी डिटेल्स, उनकी लिस्ट हमास ने अब तक उनको सामने लाकर नहीं दी। अब जो फ्रेश अटैक्स हुए हैं उसमें 400 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। प्रश्न कई सारे उठते हैं और इस पर विस्तार से हमसे बात करने के लिए इजराइल से भारत के राजदूत जो है रूबेन एजार, वो हमारे साथ बैठे हैं। एम्बेसडर एजार, थैंक यू, नमस्ते। धन्यवाद आनंद, थैंक यू फॉर दिस इंटरव्यू। तो पिछली बार से अब की बार तक आपकी हिंदी आप ज़्यादा समझ रहे हैं क्योंकि आप ऐसे सर हिला रहे थे कि ठीक है, ये जो बात कर रहा है ठीक कर रहा है। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि ये फिर से आपने अटैक्स क्यों शुरू किए हैं? व्हाई हैव यू स्टार्टेड द अटैक्स अगेन? Well, we had a temporary ceasefire for 42 days. During this ceasefire, we were intending to negotiate a further release of hostages. Hamas, unfortunately, has rejected the proposals coming from the American mediator, Mr. Witkoff, again and again. And therefore, we didn't have any choice but to renew our military pressure because we want to bring our hostages back, and we want to make sure that Hamas doesn't rearm and regroup and doesn't remain as the government of Gaza. Hamas is exploiting the Palestinian population. They are stealing from them their aid, and they are trying to remain in power in order to attack us in the future again. We will not agree to that. तो एम्बेसडर एजार का ये कहना है, 2-3 बातें। 42 दिन तक युद्ध विराम था और इसमें कहीं ना कहीं बातचीत के जरिए शांति बहाल करने की बात हो रही थी, लेकिन अमेरिकन मीडिएटर विटकॉफ की जितने भी प्रपोजल्स थे हमास ने उसको मानने से इनकार किया। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि इजराइल नहीं चाहता कि हमास गाज़ा की सरकार को चलाए। गाज़ा की सरकार पर चिपक के बैठकर हमास जो उधर एड आ रहा है, जो पैसा आ रहा है, उसे युद्ध के लिए प्रयोग करेगा। और इजराइल को ये डर है कि हमास आज तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर वहीं काबिज रहा, बैठा रहा, तो भविष्य में जाकर फिर से इजराइल के साथ युद्ध छेड़ सकता है। तो ये अस्वीकार्य है इजराइल को। बट एम्बेसडर एजार, विच आर दीज फ्रेश टारगेट्स? अभी आप जहां हमला कर रहे हैं, जो आपने हमला किया, 400 लोग मारे गए हैं। क्लेम्स आर कि दे आर, उसमें सिविलियंस हैं, आम नागरिक हैं। Is that true? Who have you targeted? Well, we have targeted chief terrorists from Hamas and the Palestinian Islamic Jihad. Unfortunately, these people are using citizens as human shields, and they are disguising themselves in order to try to avoid them being hurt by our attacks. And this is very unfortunate. We are seeing constantly, since the attacks on the 7th of October, 16 months ago, that Hamas is exploiting every code, every rule in the book. They're abusing it in order to stay in power. They are firing us from hospitals, they are occulting themselves behind terrorists, they are not releasing any information on the hostages. They are sequestrating the aid that is being sent by the international community and using it to sell it to the population and to control the population. So this is very, very difficult challenge. We have to deal with that. But at the end of the day, we are not going to change our policy. We need our hostages back. We have managed to bring back 195 hostages thanks to the military pressure out of 254. We are still having 59 hostages left. Unfortunately, most of them are dead. We have signs that at least 24 of them are alive. So we will continue putting pressure until we bring all of them, and until Hamas either agrees diplomatically to leave the Gaza Strip or face a ground invasion by Israel. तो इजराइल के बाद एम्बेसडर एजार ये बात कह रहे हैं कि इजराइल का एक पार्ट तो बहुत क्लियर है कि हमास गाज़ा में नहीं रह सकता, हमास को गाज़ा से निकलना पड़ेगा, उसकी सत्ता छोड़नी पड़ेगी। आरोप ये है कि वो सारे ऐसे हथकंडे अपना रहा है जो मानवाधिकार का हनन है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, और बहुत सारे हथकंडे जैसे अस्पताल से अटैक करना, आम नागरिकों को, सिविलियंस को ढाल बनाकर उनके पीछे से प्रहार करना, और सबसे बड़ी बात कि दुनिया भर से जो एड जा रहा है, जो पैसा जा रहा है वहाँ पर रिहैबिलिटेशन के लिए, रेस्क्यू के लिए और लोगों की भलाई के लिए, जन चिकित्सा के लिए जो जा रहा है, जन कल्याण के लिए जो पैसा जा रहा है, उसको हमास उसको कंट्रोल कर आम नागरिकों को बेच रहा है और फिर सपोर्ट खरीद रहा है।
ये इजराइल का आरोप है और कह रहे हैं कि ये हम होने नहीं देंगे, ये गलत है। तो हमास जो कर रहा है वो गलत है, ये इजराइल का कहना है। दूसरी बात कि बंधकों की लिस्ट अभी तक हमास ने साझा क्यों नहीं की? 200 से ज्यादा, 250 से ज्यादा बंधक थे, 254 थे, 190 को डराकर धमकाकर किसी तरह से 190 को वो वापस लाएं। 59 ऐसे अभी भी बंधक हैं जो अभी तक डिटेल्स सामने नहीं आए हैं। और एम्बेसडर रेजार का ये कहना है कि उसमें से शायद सिर्फ 24 अभी भी जिंदा हैं, ओनली 24 आर स्टिल अलाइव। लेकिन उन बंधकों को हम किसी भी हालत में वापस लाकर रहेंगे। हमास ये नाम जाहिर क्यों नहीं कर रहा, ये उनका कहना है। बट एम्बेसडर रेजार, देयर इज अनदर पॉइंट दैट्स कमिंग थ्रू कि इजराइल के अंदर भी एक पॉलिटिकल अपहीवल है। बेंजामिन नेतन्याहू पर काफ़ी प्रेशर है, वो काफ़ी अनपॉपुलर हैं, बट इस पूरे मुहिम के लिए सब साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो कहीं अपने पॉलिटिकल करियर को बचाने के लिए तो ये नहीं कर रहे हैं। देयर इज अ क्वेश्चन, that is Prime Minister Netanyahu rekindling this strife so that he can continue to stay on the seat, stay in power? Well, this military strike was approved by the cabinet and it was a recommendation of the entire security brass that came with a proposal to renew the military action because we have a common interest despite all all arguments we have in Israel. We are a democracy, there are disagreements. Despite all disagreements, there is a consensus that we cannot surrender to the extortion of Hamas. And if they refuse to negotiate and to have a diplomatic solution that will include these two elements that we agreed upon in Israel, to bring back the hostages and get rid of Hamas, and the aims that are also part of what the United States want to achieve and many countries in the region, then we don't have any choice. So it was a recommendation of our security brass. Of course, that there are tensions within the Israeli system. The families of the hostages are very worried because when you use military action, hostages might get hit. There are other arguments that have to do with internal politics in Israel, with the fact that we have to pass a budget. There are many challenges in politics when you live in a democracy, but at the end of the day, the cabinet is very concentrated in these two goals that I told you. And I think that nothing is going to stop us to continue pursuing these goals. We hope that we won't have to use more military power and we will achieve it diplomatically. But if we don't have any choice, Israel will have to go in, take over the Gaza Strip, get rid of Hamas, and transfer power to a more moderate leadership, transfer power to international stakeholders that will be ready to assume a role. But nobody is going to come to Gaza to assume a role while Hamas is there. Correct. Right? तो एम्बेसडर रेजार का ये कहना है कि देखिए, जैसे हर देश में होता है और हर लोकतंत्र में होता है कि एक सत्ता होता है, विपक्ष होता है और फिर अलग अलग राजनीतिक विचारधाराएं होती हैं, लेकिन एक बात पर सब लोग एक साथ जुड़े हुए हैं। ये हमला किसी एक व्यक्ति का डिसीजन नहीं था, पूरे सदन का, पूरे कैबिनेट का डिसीजन था। यानी कि सत्ता विपक्ष सब जुड़कर एक बात को मानते हैं और सभी इजरायली इस बात को मानते हैं कि जब तक हमास है तब तक इजराइल सुरक्षित नहीं। तो हमास को जाना होगा और ये अटैक तब तक करेंगे जब तक हमारे बंधक वापस नहीं आते और हमास गाजा से बाहर नहीं जाते, क्योंकि तब तक शांति बहाल नहीं हो सकती। तो ये एक समन्वय सब जगह बना है। ऐसा नहीं है कि कोई सत्ता पे बैठना चाहता है, क्योंकि सत्ता विपक्ष सब हैं। और इजराइल, बहुत इंटरेस्टिंग है कि उनका जो वॉर कैबिनेट है उसमें ऑपोजिशन लीडर की भी बहुत बड़ी भूमिका है, तो ये सत्यता है। पर इनका ये कहना है कि ये चाहते हैं कि इसे बातचीत से, डिप्लोमेटिक तरीके से इसको सुलझाया जा सके, लेकिन अगर युद्ध ही एक विकल्प है और लातों की बात ही ये बात मानेंगे, बातों की बात नहीं मानेंगे, तो हम वो करने को तैयार हैं। क्योंकि उनका ये कहना है कि कोई भी गाजा पट्टी पर, गाजा पर नहीं आएगा जब तक वहाँ पर हमास है। तो एक मॉडरेट लीडरशिप को सत्ता धारण करना होगा, जो कि शांति चाहती है, जो युद्ध के लिए काम नहीं करेगी, और हमास को वहाँ पर नहीं रहना होगा। बट वेयर इज द एंड टू दिस रोड? The wiping out of Hamas in terms of cadre is possible, Ruben Azar, Ambassador Azar, but how are you going to wipe out the thought process? Because well, that is a much longer process. We have to engage in de-radicalization of the Palestinian population. People have to understand the Gaza Strip was ruled by Hamas for 2 decades. In these 2 decades, they have indoctrinated the young population to destroy Israel, not to think about their own future, about building Gaza. No. They sequestrated everything they could in order to build this war machinery against Israel, including in the education system. So we have to rebuild the education system, the Gaza Strip, to get people
to be educated to love peace, not to destroy the state of Israel, to build their own communities. Israel is not interested in controlling Palestinian daily lives. So we have to engage in a de-radicalization process, which is a much more difficult task and requires many, many years to come. तो एम्बेसडर रेज़र से मैंने पूछा कि देखिए आप कार्टर को तो मार देंगे, आतंकवादियों को मार देंगे, लेकिन ये सोच को कैसे मारेंगे? तो उन्होंने कहा कि 20 साल से हमास वहाँ काबिज है और जो युवा पीढ़ी है उसका दिमाग को उन्होंने ब्रेन वॉश किया है, तो उसको डी रेडिकलाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको सिर्फ एक चीज़ सिखाया है, अपनी जान की परवाह मत करो, इजराइल का विनाश करो। अब इससे अगर घूम के आना है तो एक लंबा प्रोसेस है और जिस पर सबको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब हमास वहाँ से हट जाए, सफाया हो जाए, गाज़ा पट्टी से बाहर हो जाए और उसके बाद एक वहाँ मॉडरेट लीडरशिप आए जो शांति बहाल करे। इस तरीके की रणनीति कि एक देश का सफाया, एक जाति, एक प्रजाति उसका सफाया, ये किसी का अगर ध्येय हो गया तो शांति कभी बहाल नहीं होगी। माय फाइनल क्वेश्चन, देयर वाज दिस एंटायर AI ड्रिवन वीडियो एंड डोनाल्ड ट्रम्प सेड वीड लाइक टू ओन गाज़ा। एक thought process that economic prosperity will replace terrorist activity and this. Is that a possibility? Are other Gulf nations, the Muslim nations, if I may say, the Islamic nations, are they willing to work towards making Gaza an economic hub along with Israel? President Trump is bringing fresh thinking. We cannot go to the formulas of the past. We have tried many things, we failed, and we think that together with President Trump, that the Palestinian people deserve a better future. When you defeat radicals, then you can build a future. When you have consensus about how to sideline those that want to disrupt prosperity, then you have a hope. Then the sky's the limit. Gaza sits on a beautiful beach in the Mediterranean Sea. They have all the opportunities they can to get Gaza to become like Dubai or become like Tel Aviv. It's just a matter of decision, whether you're going to concentrate in building your cities and your country, or you're going to continue with this jihad against the state of Israel. तो मेरा प्रश्न ये था कि गाज़ा पट्टी को, ट्रम्प का एक वीडियो वायरल हुआ था ना कि गाज़ा पट्टी को हम खरीद लेते हैं, फिर इस्लामिक देशों ने कहा हम ले लेंगे, तो क्या उसे एक इकोनॉमिक हब बनाया जा सकता है, तेल अवीव जैसा, दुबई जैसा बनाया जा सकता है? एम्बेसडर रेज़र कहते हैं हाँ बना सकते हैं, लेकिन पहले ये कट्टरपंथी सोच हटानी पड़ेगी, कट्टरपंथियों को हटाना पड़ेगा। फिर आपको ये देखना है कि किसी का विनाश आपका ध्येय है कि आपका विकास आपका ध्येय होता है। अगर आप ये सोच के चलेंगे कि मेरा सिर्फ एक ही काम है कि मुझे प्लान करना है किसी को कैसे मैं बर्बाद करूं, तो आप कहीं नहीं आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप कहें कि मैं खुद को कैसे उभारूं, तो गाज़ा एक बहुत सुंदर जगह है, सुंदर लोकेशन, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन, और ये पॉसिबल है। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे ये है एम्बेसडर रूबिन इज़ार कि इसको आपको क्या लग रहा है, कितना समय लगेगा, कब तक ये खिंचने वाला है? बिकॉज वॉर इज़ कॉस्टली, सबको इसका खामियाजा, इजराइल को भी तकलीफ हो रही होगी, इजराइल इज़ ऑल्सो हर्टिंग। So how long do you think this is going to continue? Well, look, the basic prerequisite to create stability is to have security. Israel has a very prosperous economy, even though we are having this war, thanks to the fact that we have defeated Hezbollah, that we have hurt Iran and their proxies. Israeli economy is doing very well. Only 2 days ago, Google has bought an Israeli company called Wiz for $32 billion. Wow. Okay? And only 2 days ago, SOCAR from Azerbaijan and British Petroleum decided to invest in offshore drilling of gas in Israel. So the Israeli economy is very robust, is very attractive, and we have to get over this war, but we won't be able to create security and stability while Hamas is there. So we have to be determined, and we have to be patient to use all the power that is needed in order to sort the situation so we don't have a 7th of October again. तो एम्बेसडर रेज़र से मेरा अंतिम प्रश्न ये था कि ये समाप्त कब होगा, कब ये ख़त्म होगा ये सिलसिला जो युद्ध का है, क्योंकि युद्ध कभी किसी का फ़ायदा नहीं करता, दोनों तरफ से नुकसान होता है, आर्थिक रूप से भी, और फिर सबको तकलीफ होती है। तो एम्बेसडर रेज़र का ये कहना है कि इजराइल आर्थिक रूप से संपन्न है, काफ़ी सारा निवेश वहाँ हो रहा है, गूगल ने अभी एक इजरायली कंपनी खरीदी है $32 बिलियन के लिए, अज़रबैजान से और ब्रिटिश पेट्रोलियम से इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, तो काफ़ी आर्थिक रूप से इजराइल संपन्न है। लेकिन इनका फोकस बहुत क्लियर है कि जब तक आप सिक्योर नहीं होंगे, अपने आप को पूरी तरह से आप सेफ नहीं कर लेंगे, तब तक आप शांति नहीं देख सकते, और शांति बहाल करने के लिए हमास का सफाया आवश्यक है। तो जब तक हमास का सफाया नहीं होगा, तब तक इजरायली संघर्ष करेंगे, संयम बरतना पड़ेगा,
काफ़ी टेस्टिंग होगा, लेकिन ये छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमास वहाँ से जाएगा तभी वहाँ पर शांति होगी, ये इजराइल का मानना है। एम्बेसडर रूबेन निज़ार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। धन्यवाद आनंद, थैंक यू। थैंक यू।